Good morning, students. Today we revise the question answer of chapter number 12, friction. So let us start the revision of question answer of chapter number 12. First question is write the factors affecting friction. के केड़े factors ने जेड़े friction ਨੂੰ affect ਕਰਦੇ ਆ. First point, nature of surface. ਸਾਡੇ ਕੋਲ smooth surface है ਜਾਂ rough surface है. कि स्मूथ सरफेस है ਜਾਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਔਨ ਵਿਚ ਆਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ: ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਰਫੇਸ, surface area of an object, mass of an object, state of motion of an object. Clear? So these are the 4 factors. Next, how many types of friction? Name them. So कितनी type the friction are there? Are mainly 3 types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction. So these are the 3 types of friction which we learn in this chapter: static friction, sliding friction and rolling friction. Next question, name the device as used to measure static friction. ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ device ਹੈ ਜਿਹੜਾ static friction ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? That is spring balance, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ weight ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ static friction. Clear? Spring balance. ਠੀਕ ਹੈ। Next, what are the advantages of friction? There are so many advantages of friction. So due to friction we able to walk, क्योंकि साढ़े फीट ते साढ़े जेड़ा सरफेस है जिदे ते असी मूव करते हैं उहदे विचाले फ्रैक्शन होंदी है, then we able to one step to another step. Next, we able to write on paper, क्योंकि फ्रैक्शन करके ही असी पेपर के ऊपर जो भी अल्फाबेट्स ने वो लिख सकते हैं। A nail can be hammered into a block of wood. एक मेक है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਏਬਲ ਟੂ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ, वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्मॉल क्या होंगी है स्टैटिक फ्रिक्शन हो बिकॉज टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स फाइंड लैस टाइम टू गैट इंटरलॉक अगेंस्ट ईच अदर। सो जिहड़ियां दो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ने बहुत घट टाइम लैंदियां एक दूजे इंटरलॉक होने लई। सो किते ना किते इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस एज अ रिजल्ट एट विच दे एक्सपीरियंस लैस फ्रैक्शन। सो वो करके साडे कोल जिहड़ी हैगी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जिहड़ी है स्टैटिक फ्रिक्शन नालों घट होंदी है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन दे विच मैक्सीमम टाइम लगता इंटरलॉक होने, बट इस केस दे विच मिनीमम टाइम साडे कोल लगता जिहड़ा इंटरलॉक है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ होंदियां सरफेस दे विच जिहदे करके घट फ्रिक्शन हो कॉज करते हैं। क्लीयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर दी गिव दी डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सो असी एडवांटेजेस कीतियां, देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस। सो नाउ वी डिस्कस वट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इट अपोजेस दी मोशन, क्योंकि साडी स्पीड नू स्लो करता है जे साडे को फ्रिक्शन दे करके साडी स्पीड लो होंदी है। उस तो इट रिजल्ट्स इन वीयर एंड टीयर, क्योंकि असी कोई भी चीज़ पहनी हुई है, जुत्ती पहनी हुई है, हौली हौली वो घस जाती है साडे को। सो इस करके साडे को इस तरह ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट ऑल्सो कॉजेज हीट। सो असी जो दो हैंड्स नू रब करते हो गर्म हो जाते हैं, बट ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪਾਰਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਜ਼ ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कि किमें असी फ्रिक्शन नू डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी मैथड्स बाय विच वी रिड्यूस फ्रिक्शन। सो यूजिंग लुब्रीकेंट्स, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਲੈਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਨ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਵੇਜ਼ ਬਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ।
नेक्स्ट, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ सोपी फ्लोर, क्यों डिफ़िकल्ट है? बिकॉज ऑफ स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट, क्योंकि प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं होंगी जिहदे करके घट फ्रिक्शन होंगी है। सो जिहदे करके साडे को असी बहुत औखे जिहड़े हैगे सोपी फ्लोर ते जो ऑयली फ्लोर ते मूव कर सकते हैं, क्योंकि जे फ्रिक्शन बहुत घट बहुत लैस अमाउंट दे विच प्रेजेंट होंगी है, क्योंकि सरफेस टोटली समूथ हो जाता है। दैट्स वाई वी आर अनेबल टू वॉक ऑन अ सोपी फ्लोर। सो नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शू विद स्पाइक्स पा के क्यों दौड़ते हैं स्पोर्ट्समैन? टू इनक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट द शूज़ डोंट स्लिप वाइल दे वॉक, रन टू और प्ले, क्योंकि जे वो ज़्यादा साडे कोले जदों फ्रिक्शन इनक्रीज होगी जिहदे करके स्लिप नहीं करनगे तो ईजिली वॉक भजणगे तो खेडणगे जां वॉक करनगे। सो दैट्स वाई दे यूज़ अ स्पाइक्स, क्योंकि इंटरलॉकिंग साडे को ज़्यादा होगी, प्रॉपर होगी। सो इस करके साडे को जिहड़ी हैगी है फ्रिक्शन ज़्यादा होगी जिहदे करके कोई स्लिप नहीं होंगे। वाई फ्रिक्शन कैन नैवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, असीं इहनूं खत्म क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, क्योंकि कोई भी सरफेस साडे को जिहड़ा हैगा वो समूथ नहीं हुंदा, किते ना किते उहदे च जिहड़े स्मॉल जिहड़े स्पेस ने वॉइड्स ने प्रेजेंट हुंदे जिहदे च इंटरलॉकिंग हुंदी है जदों दो ऑब्जेक्ट्स आपस च कंटैक्ट दे विच हुंदियां ने। क्लीयर? नैक्सट क्वेश्चन, वाई दी टायर्स ऑफ वहीकल्स आर ट्रेडेड, क्यों ट्रेडेड होंदे ने? उन्हां च लाइनां जिहियां क्यों होंदियां ने? सो टू प्रोवाइड बैटर ग्रिप विद ग्राउंड, सो प्रॉपरली साडे को ग्रिप हो सकन, प्रॉपरली इंटरलॉक हो सकन ग्राउंड दे नाल, जिहदे करके साडे को ईजिली मूव कर सकन। सो इस करके साडे को जिहड़े टायर्स ने वो ट्रेडेड होंदे ने, क्योंकि जे स्मूथ प्लेन होणगे साडे को कोई ट्रेड नहीं होगी तो कोई ईजिली स्लिप भी कर सकते हैं। क्लीयर? सो दैट्स वाई दे आर ट्रेडेड इन नेचर। नेक्स्ट, डिफाइन फ्लूइड फ्रिक्शन, हाउ कैन वी रिड्यूस इट? फ्लूइड फ्रिक्शन की है, किवें असीं इहनूं रिड्यूस कर सकते हैं? दी फ्रिक्शन बिटवीन दी लेयर्स विदिन अ विस्कस फ्लूइड दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, जिवें ऑयल हो गया साडे को कोई भी जिहड़ा विस्कस जानी गाढ़ा फ्लूइड हो गया वो एक दूजे दी लेयर्स दे उपर मूव करदा, जिवें शहद हो गया। सो वो साडे को जिहड़ी उन्हां दे विच भी किते ना किते फ्रिक्शन हुंदी है जिहदे करके स्लोली मूव करदा, जबकि वाटर दी जिहड़ियां लेयर्स ने वो ईजिली घट फ्रिक्शन होने करके ईजिली मूव करदियां ने। बट साडे को जे असीं शहद जां कोई होर ऑयल वगैरह लै लईए जिहड़ा गाढ़ा जिहा वो हौली हौली साडे को बॉटल चों बाहर आउंदा है। सो उस टाइप दी फ्रिक्शन नूं असीं फ्लूइड फ्रिक्शन कहने आ। इट कैन बी मिनीमाइज्ड बाय गिविंग अ सूटेबल शेप्स टू फ्लूइड्स बॉडी मूविंग इन, सो प्रॉपरली असीं शेप दे के उहनूं असीं मिनीमाइज कर सकदे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन वाटर आर स्ट्रीमलाइंड शेप गिव रीजन, क्यों स्ट्रीमलाइंड होंदियां ने? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इट सेव फ्यूल एंड एनर्जी। सो इस करके वो मूरे मच्छी की जी फिश की भी शेप वो भी स्ट्रीमलाइंड है, मूरे भी साडे को एक कोन शेप होंदी है, उस तो पिछों भी साडे को ओहदी बॉडी है जिहड़ी वो इस टाइप की होंदी है, जिवें साडे को प्लेन हो गए ताकि एयर दे विच साडे को उड़दे ने, क्योंकि उन्हां दी शेप भी इदां दी होंदी है ताकि फ्रिक्शन जिहड़ी है घट तो घट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन, ताकि साडे को जिहड़ियां गीटियां ने वो ईजिली साडे को मूव कर सकन। डिस्कस वाई फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड अ नैसेसरी ईवल, क्यों कहते हैं कि जिहड़ी फ्रिक्शन हो साडे को रजे किते ना किते बुरी है? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन फॉरेस्ट फायर टेक प्लेस, क्योंकि काफ़ी जंगलों के विच फ्रिक्शन करके ही अग लगती है। सो वाई अ मशीन इज़ ऑपरेटेड, वैन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट एनर्जी जनरेट दैट कॉजेज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड मशीन पार्ट डैमेज हो जाते हैं। टायर्स ऑफ वहीकल जिहड़े अगे घस जाते हैं, सोल्स ऑफ शूज़ ने जिहड़ियां वेयर आउट हो जांदियां ने, सो बार बार सानूं चेंज करने पैंदे ने। सो दैट्स वाई इट इज़ नैसेसरी ईवल, सो साडे लई बुरी भी है जे एक्सेस च है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, की डिफरेंस है स्लाइडिंग ते रोलिंग फ्रिक्शन? सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट अकर्स वैन वन सरफेस इज रबिंग अगेंस्ट अनदर सरफेस, जदों एक दूजे के उपर रगड़ खाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इट अकर्स वैन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन अनदर सरफेस, जदों रोल कर दी है साडे को, जिवें बॉल हो गई, कार व्हील हो गई। सो उस तो अगे वन स्टेबल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, एक ही स्टेबल पॉइंट कंटैक्ट है साडे को स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे। सैकेंड पॉइंट वन स्टेबल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ये मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट ने। थर्ड पॉइंट वुडन स्लैब ओवर कंक्रीट, सो जी वुडन स्लैब वो कंक्रीट के उपर असीं मूव करवाने वो साडे को स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है। कार व्हील ओवर असफाल्ट एक्सट्रा, सो वो साडे को रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है। सो दीज आर दी 1 to 16 क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। इफ you guys have any doubt and any question, you can call me or through message you clarify your doubt. Thank you.